Good morning, everyone. Now, we've got a quick question. कुछ ऐसा तो नहीं है. We've got something. ठीक है. Now, but yesterday we had done the bicameral aspect in terms of the central level. We had not done the state level aspect. Now I'll take you to state level so that there is no confusion. ठीक. Now, good morning, everyone. Yesterday we had seen how important is Rajya Sabha. Should we even remove Rajya Sabha? How or from where the demand was there, why the demand was there. We've seen the demand is basically because the directly elected House bill is being restricted by indirectly House or indirectly elected House. But ज़रूरी भी है ये directly थोड़ा ज़्यादा जोश में they may not make some rule which may not be good for the whole country. तो ये सब एस्पेक्ट्स तो देख लिए थे. However, we had not seen it from the perspective of bicameral state legislature. At least we had not seen that. Now, heading लिखिए आप bicameral state legislature. That is what the heading is, bicameral state legislature. हम लोग वी आर डूइंग पार्लियामेंट, टॉपिक पार्लियामेंट्री है. हाउएवर पार्लियामेंट से अब हम स्टेट की तरफ चले गए, बट इस टॉपिक के फिर से पार्लियामेंट में आ जाएंगे. Because state legislature we are not supposed to do separately for the exam. अगर टेक्स्ट में दिया हुआ है, टेक्स्ट में you will read it. But in terms of understanding, you will find it is a replica. Replica रहेगा पूरा का पूरा स्टेट जैसा. सिर्फ कुछ जगह पे वेरिएशन है. Wherever variation is there, we would see. उसको हम चेक कर लेंगे, उसको अलग से देख लेंगे हम लोग. ठीक है. So heading is bicameral state legislature. Now, बाइकैमरल स्टेट लेजिस्लेचर मतलब दो हाउस हैं एक स्टेट में. ठीक है. एक लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक लेजिस्लेटिव असेंबली. तो यहाँ पे यू हैव द एमएलए एंड हेयर यू हैव एमएलसी. जैसे वेस्ट बंगाल में वी डोंट हैव एमएलसी. एमएलसी है ही नहीं क्योंकि वेस्ट बंगाल में एक ही हाउस है. जहाँ पे दो हाउस होंगे, एक तो ये भी पता होना चाहिए हाउ मेनी स्टेट हैज़ टू हाउसेस. ठीक है. तो टोटल 6 स्टेट में 2 हाउसेस होगा. यूपी में है, बिहार हैज़ इट, महाराष्ट्र हैज़ इट, कर्नाटका हैज़ इट, तेलंगाना हैज़ इट एंड आंध्रा हैज़ इट. टोटल 6 स्टेट हैज़ बाइकैमरल स्टेट लेजिस्लेचर. वहाँ पे 2 हाउसेस हैं. एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वी वुड सी एग्जैक्टली बनते कैसे हैं या आउट कैसे होते हैं. हाउ अ स्टेट कैन हैव अ सेकेंड हाउस, हाउ द स्टेट कैन रिमूव सेकेंड हाउस. ठीक है. ऑल्सो इज सेकेंड हाउस इम्पॉर्टेंट. ऑल्सो सेकेंड हाउस तो देखो इम्पॉर्टेंट तो है इन टर्म्स ऑफ राज्यसभा व्हेन वी सी लुक इनटू दैट. हाउएवर, कैन वी कंपेयर राज्यसभा विद लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द आंसर इज नो. Rajya Sabha cannot be compared with the Legislative Council because Legislative Council is not Rajya Sabha in any sense. कोई सेंस में है ही नहीं राज्य सभा. So that also I would make you understand. ठीक है. When you talk about the assemblies, एक असेंबली में मैक्सिमम हो सकते हैं 500 MLA एंड मिनिमम हो सकते हैं 60 MLA. So it means that 500 MLAs maximum hai. No state can have 500 MLAs plus, and you cannot have less than 60. ठीक है. However, 3 state has less than 60 also. You have 32, 40, 40. We would write about that also. थोड़ी देर के बाद उनके बारे में लिखेंगे हम लोग. But the point is, exam point of view, yes, 500 is the maximum.
60 is minimum, but we have state जहाँ पे 40 and 40. मतलब 3 states are there which who are having numbers less than 60. As these are having less than 60, we have to memorize it separately. इनको हमें रटना पड़ेगा क्योंकि had it been 60, मतलब don't mug up those states which are having 60 क्योंकि that is minimum. You can't, you're not expected to memorize for all. Now, in terms of numbers, we have seen all the states would fall under this category. Exam के लिए don't memorize for all 28 state. Only इनको याद रखेंगे. Basically that is Sikkim, Goa and Mizoram. ये 3 state हैं जिनके पास the numbers which are less than 60. अब आता है second house means that is you have legislative council. Legislative council cannot be more than one third of legislative assembly. Means whatever or the maximum strength for a legislative council is actually dependent on the size of the legislative assembly. So 1/3 से ज़्यादा, you cannot have more than 1/3 of what the legislative assembly has in terms of members. It means legislative council's number is directly dependent on legislative assembly. उसका correlation रहेगा इसमें. It would be related to legislative assembly. इसका मतलब है जैसे अगर 100 is the legislative assembly. Imagine that the strength of the legislative assembly is 100. So therefore, the strength of the legislative council, मैंने आपको बताया legislative assembly का 1/3 maximum हो सकता है. Now, if it is maximum is 1/3, so if legislative assembly is 100, then legislative council would be 40. ठीक है? Again, I am repeating something. Legislative assembly का more than 1/3, that is maximum, मतलब 1/3 is the maximum. You cannot have more than 1/3 of what the legislative assembly is. And we see maximum अगर legislative assembly 100 है तो ये 40 होगा ये. ठीक है? Now, एक पॉइंट आता है how come this is coming to 40? एक बार देख लेते हैं. See, when you look at the composition of legislative council, here we clearly see the total number of legislative council of a state having such council shall not exceed 1/3. This is what I was mentioning. 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं. तो हमने वो नंबर क्या देखा? 100 है legislative assembly में तो 40 legislative council में होंगे. अब ये आता है कि this calculation what I am doing on the board is not fulfilling this number of 1/3 because the reason is that it cannot be less than 40 also. So therefore, don't make this mistake that 1/3 maximum limit है. So don't think 100 legislative assembly होंगे. So you will have 33 because no, you will not have 33 because it cannot be less than 40. I hope you have understood why I wrote here 40 and not 33. ठीक है? Agreed. If legislative council is allowed to them, we may have another number. That is a separate case. Now, overall, what we see in terms of the exam, we find that एक तो minimum number हमने देख लिया 60, but there are 3 states having less than 60. Maximum देख लिया 500. You don't have anything more than 500.
Also, legislative council is 1/3 maximum, but cannot be less than 40. अब बात आती है that legislative council में how it is made, how legislative councils are made. So for that we have to look at Article 169. And 169 say, पहली बात तो you'll have to memorize exactly how it is made. Means let's say a state supposed to pass a resolution. If yes, then with what majority? And is Parliament supposed to pass something? If yes, then with what majority? With this, you will get the idea exactly कि legislative council कैसे बनता है ये, ठीक है? तो एक बार देख लेते हैं. We have one article 169. This is for both creation as well as abolition. दोनों के लिए एक ही article use होगा. Now you want to create or abolish legislative council. So what needs to be done? One thing is that state should pass a resolution. Okay, so at least we know that now starting has to be from the state side. What kind of resolution? Majority of the total membership. So it is a special majority they are asking. Total majority and not less than 2/3 of the members present and voting. It means if a house wants to go in for, मतलब West Bengal needs to go in for 2 houses. वैसे West Bengal is demanding to go for 2 houses. There are many states. It's not unique to West Bengal. Assam is demanding. With West Bengal, Odisha is also demanding. Rajasthan is also demanding. So there are few states who are demanding second house. Okay, we would see what's the use of the second house or the disadvantage of second house. तो पहला तो ये है, West Bengal if wants to have a second house, it needs to pass a resolution by special majority. Now, does that mean that once the resolution is passed, then you have a second house? No. After that, what would happen? Parliament would pass a law. ठीक है? So we have वापस पढ़ते हैं. Nothing, notwithstanding anything, Article 168, Parliament may by law provide. ठीक है? इसका मतलब क्या है? Parliament ही deciding authority है. You could have second house or you cannot have second house. Means Parliament last में decide करेगी. Means a resolution is passed by West Bengal. Special majority के साथ pass होगा. Then the aspect would go to Parliament. Parliament with simple majority would pass it. With that, creation हो जाएगा, abolition हो जाएगा. दोनों चीजें साथ ही हो सकती. साथ in the sense, you don't require any other article. Procedure is same. Andhra Pradesh actually, after independence, till 85 it had second house. 85 में हटा दिया उन्होंने. Then 2007 it brought it again. मतलब we have a state which had 2 house, then removed second house, then again brought in second house. So we've had a certain situation. Now, we need to see, is there any advantage of having a second house? अब दो view आते हैं. When you look at both the views, one view says you should have second house. वो view क्या बोलेगा? Pretty understandable that view would say, more the member, better would be representation. More the member, better would be laws. Because जितना ज़्यादा members होंगे, उतना ज़्यादा better representation मान लिया जाएगा, तो उतना better laws मान लिए जाते हैं. जब देखो, democracy means participation. In democracy, participation जितना ज़्यादा होगा, उतना अच्छा है. And when I say democracy means participation, means basically it is the people. More the people, the better it is in terms of making laws. So here we find the second house जो रहेगा, उसको participation increase कर लेंगे. ज़्यादा better bills, hastily brought up legislation जो हमने राज्यसभा में देखा था, उसके कुछ arguments आप उठा के डाल सकते हो. However, I have told you we cannot
relate, or we cannot say that it is Rajya Sabha, like Rajya Sabha, because जैसे एक बिल लोकसभा से पास करता है, इट गोज टू राज्यसभा. आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग रिलेटेड टू मनी बिल. तो इफ राज्यसभा डज नॉट अप्रूव इट, वो एक्ट नहीं बनता है. दैट कैन नॉट बी मेड एज एन एक्ट. सॉरी. हाउएवर स्टेट में ऐसा नहीं होता. सो देयर इज अ डिफरेंस इन स्टेट. व्हाट हैपेंड, असेंबली ने एक बिल पास किया, इट गोज टू राज्यसभा, इट गोज टू लेजिस्लेटिव काउंसिल. लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन कीप इट फॉर 3 months. 3 महीने तक रख लेगा अपने पास. आफ्टर 3 months बिल वापस चला जाएगा असेंबली में. वो बात अलग है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल पहले भी भेज सकती है. लेजिस्लेटिव काउंसिल कुछ चेंजेस भी करवा के बोल सकते हैं, दिस इज व्हाट द चेंजेस यू नीड टू डू, वॉट एवर मे बी द केस. 3 months के बाद वो लेजिस्लेटिव असेंबली पहुंच जाएगा. इसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली मान लो नहीं मानती है कि आप जो चेंज बोल रहे हो, अगेन बिल भेजा जाएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल को. नाउ लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन कीप द बिल फॉर 1 month. 1 महीना रखा जाएगा. सो टोटल 4 months हो गया. फर्स्ट केस में 3 months, नेक्स्ट टाइम इट कम्स 1 month, टोटल 4 months. आफ्टर दैट द बिल इज डीम्ड टू हैव पास्ड. इसका मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल डिसएग्री कर जाएगी, सब कुछ कर जाएगी, उसके बावजूद बिल बन जाएगा, मतलब एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. जबकि राज्यसभा अगर अग्री नहीं करेगी तो बिल एक्ट में नहीं कन्वर्ट होगा. सो यू कैन नॉट से लेजिस्लेटिव काउंसिल इज लाइक राज्यसभा. नो, इट वुड हैव बीन बेटर इफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट्स लाइक राज्यसभा. मतलब उसको भी पावर दे दो दैट विदाउट इट्स परमिशन यू विल नॉट हैव बिल. वो मतलब एक्ट, तब बात अलग आ जाएगी. However, till that time, it's only a delaying chamber. It acts as a delaying chamber. सिर्फ चीज़ों को डिले करती है. तो एक व्यू यही है कि, एंड दिस इज व्हाट असेंबली में डिफरेंस है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल इज डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ, यू कैन नॉट कंपेयर इट विद राज्यसभा. अलग है वो कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि उसके पास पावर लिटरली नहीं है, उसके पास पावर सिर्फ डिले करने की है. व्हेन वी लुक एट द लेजिस्लेटिव असेंबली, इनके जैसे लोकसभा के पास पावर है, सिमिलर टाइप की पावर्स इनके पास है, सारे पावर्स इनके पास है. ठीक है, फॉर द स्टेट कंसर्न दे आर सुप्रीम इन देयर ओन डोमेन इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस. ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डन इमरजेंसी, सो वी नो व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग इमरजेंसी. नाउ इन दिस केस मैंने ये बताया था ना कि स्टेट के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि सब कुछ सिमिलर ही आ रहा है. अगेन समराइजिंग इट, लेजिस्लेटिव काउंसिल कुछ लोग डिमांड करेंगे, वो बोलेंगे बेटर पार्टिसिपेशन और अच्छे लॉज बनेंगे, एंड द लॉज वुड बी बेटर, मोर पार्टिसिपेशन. बट एक व्यू जो है विच इज सेइंग वी शुड नॉट हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल बिकॉज लेजिस्लेटिव काउंसिल इज नॉट एबल टू मेक लिटरली गुड चेंजेस बिकॉज इट्स अ डिलेइंग चेंबर. ये सिर्फ खर्च करवाता है, ज़्यादा पैसा ज़्यादा खर्च करवाएगा. ज़्यादा खर्च करवाएगा इन द सेंस वी वुड हैव, it's not only the MLA, 40 MLC हो गए. don't think from 40, think from everything, incidental charges. you will require an infrastructure for them. पूरा एक infrastructure लगेगा पूरा. उसके बाद you will have officers, इनके लिए अलग से officers and servants आएंगे. you will have इनके लिए accommodation, इनकी training, इनके लिए अलग अलग जगह पे visit. बहुत ज़्यादा खर्च होता है. इट्स नॉट वन थिंग. देखो जैसे मान लो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट जज है, तो सुप्रीम कोर्ट जज को मान लो, एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, मान लो 2.5 लाख रुपए सैलरी मिलती है. सो डोंट थिंक दैट 2,50,000 रुपीज इज वॉट इज स्पेंट ऑन सुप्रीम कोर्ट जज. क्योंकि जैसे सुप्रीम कोर्ट जज इज ऑथोराइज 4 क्लर्क्स, 4 क्लर्क्स होते हैं इनके पास. पर क्लर्क सैलरी इज 80,000 रुपीज. एक क्लर्क की 80,000 रुपीज सैलरी होती है. आई डोंट थिंक दीज आर ए वाले क्लर्क नॉर्मल टाइपिस्ट नहीं होते हैं. दे आर क्लर्क मीन दे आर एडवोकेट्स, उस लेवल के अच्छे एडवोकेट्स होते हैं ये लोग. जूनियर होते हैं, दे आर यंग, हाउएवर दे आर एडवोकेट, बट क्लर्क के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं. 4 तो मिल गए, 80,000 रुपीज मिलता है इनको. 8 4 32,
तो 3.25 लाख तो ऐसे ही कॉस्टिंग आ गई। देन यू तो आप देखो 2.5 लाख हो गया प्लस वो तो करीबन करीबन 6 लाख रुपए हमने मोटा मोटा पकड़ लिया। ये सिर्फ यही है। वी आर नॉट इवन कैलकुलेटिंग द अकोमोडेशन, द ट्रांसपोर्टेशन, द अदर प्रिविलेजेस। तो पॉइंट क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सुप्रीम कोर्ट का एक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है। सो ओवरऑल कोई बड़ी बात नहीं है दैट ऑन एंड सुप्रीम कोर्ट गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड्स रहेंगे एक एक जज के पास अपने अलग से। तो पॉइंट है कोई बड़ी बात नहीं है दैट इफ अराउंड 20 लाख इज स्पेंड ऑन वन सुप्रीम कोर्ट जज, बड़ी बात नहीं है। अब देखो ये नंबर मैं सिर्फ रैंडम नंबर बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि दैट दिस मच ऑफ मनी स्पेंड। हाउएवर कोई बड़ी बात भी नहीं होती कि इतना चला जाता है। लाइकवाइज कि we have the MLCs, so don't think MLCs are only taking salary. There are many other benefits, many things would be provided to them. So overall क्या आ जाता है कि the other view is saying that don't have the second house because second house को change नहीं कर पा रहा है। ये सिर्फ it's increasing the patronage, political patronage। जैसे एग्जाम्पल है, मान लो यूपी में 400 सीट्स आर देयर फॉर MLA, वैसे 403 सीट्स हैं, just consider as 400. So 400 seats are there and I am a head of a political party. So a lot of people would come to me to get ticket कि आप मुझे टिकट दे दो, आप मुझे लड़ना है, मतलब I need to contest election. So I can make 400 people happy. 400 लोगों को तो मैं खुश कर सकता हूँ by giving them ticket. They win, they don't win, it is their aspect. वो मतलब वो कि भाई आप नहीं जीते, आपकी गलती है. But at least I can make 400 people happy. अब लेजिस्लेटिव काउंसिल आ गया तो 400 को लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया एंड नॉट मोर देन 1/3। तो एटलीस्ट भाई मैं कम से 100 लोगों को तो खुश कर ही सकता हूँ। एटलीस्ट आई विल गिव 100 पीपल दैट ठीक है आपको मैं कोशिश करता हूँ वहां से भेजने के लिए। तो पॉइंट क्या है, इट इज द अदर व्यू इज सेइंग दैट इट इज ओनली इंक्रीजिंग पॉलिटिकल पेट्रोनेज। कोई सेंस नहीं है, तो इसका मतलब यू सिर्फ टैक्स पेयर्स को बर्डन करता है ये। देखिए महाराष्ट्र में जो लास्ट सीएम थे उद्धव ठाकरे साहब, ही डिड नॉट इवन कंटेस्ट इलेक्शन। However, they got more seats. Finally, it was decided that the CM would be from शिवसेना। तो इन्होंने क्या किया कि उद्धव ठाकरे साहब विदाउट कंटेस्टिंग इलेक्शन चीफ मिनिस्टर बन गए हो, बट ही वॉज नॉट एन MLA, तो उनको MLC से एंटर करवा दिया। ही वॉज मेड एन MLC। उसमें कंट्रोवर्सी हुई थी बिकॉज गवर्नर वॉज नॉट नॉमिनेटिंग हिम, गवर्नर वॉज बीइंग आस्क्ड कि आप नॉमिनेट करो, बट गवर्नर वॉज नॉट नॉमिनेटिंग, बट लास्टली कर दिया था नॉमिनेशन। तो ओवरऑल अगर मेंस में सवाल आता है अबाउट द सेकेंड हाउस, देखिए एज पर अ कमिटी वाज डिस्कसिंग असम एंड राजस्थान बिल्स, दोनों की बिल्स को कंसिडर कर रहे थे सॉरी, दैट शुड द स्टेट these states be allowed to have a second house. So the committee actually said that every state should have a second house sorry, every state should have a second house and we should not there should be a uniformity in the policy. पूरी uniformity होनी चाहिए policy में। We should not go in for कि ये uniformity policy में change होनी चाहिए, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए कि जब मर्जी आए change हो रही है। ये एक view उनका था। However, in a federal country, whenever you answer and in a sense which is strengthening federalism without undermining the power of the center, it is generally good, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है तो ठीक है। बट पॉइंट इज आप यू कैन ऑलवेज आंसर इट दैट द से हैज टू बी विद द स्टेट। देखो स्टेट को पैसा खर्च स्टेट को करना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज अ स्टेट हैज लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेंटर स्टेट रिलेशंस में फर्क नहीं आता है, कोई फर्क नहीं होगा सेंटर स्टेट रिलेशंस में। सिर्फ दोनों के दोनों अगर हाउस बनने के बाद सेंटर हैड टू स्पेंड मोर मनी ऑन द स्टेट, दैट्स अ सेपरेट केस दैट ठीक इन्वॉल्व सेंटर। हाउएवर when no change happens in the relationship between center and state, then why the center is so much keen in having in deciding that second house होगा कि नहीं होगा। तो West Bengal wants to have second house, let West Bengal decide, but West Bengal cannot decide, वो सिर्फ resolution pass करेगी, final decision is with the parliament. So this is also
a unitary feature. ठीक है, so to have a second house, not to have a second house is also having final say is center, so unitary feature होगा. ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा. एग्जाम के लिए यू ऑल्सो नीड टू हैव दी, यू नीड टू मग अप द कंपोजिशन. रटना पड़ेगा कंपोजिशन को. व्हेन आई से कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, कैसे लोग आते हैं उसमें, नॉमिनेट कैसे होते हैं उसमें. आई विल शो इट टू यू, बट उससे पहले चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन क्या है. सर, इन लोकेलिटी सम पीपल हु आर फ्रॉम यूपी बिहार रिसाइड इन आवर लोकेलिटी. ठीक है, अच्छी बात है. दे हैव 2 वोटर कार्ड, इलीगल, नॉट अलाउड. 2 वोटर कार्ड्स इलीगल है बेटा. एंड दे ऑल्सो वोट हेयर इन देयर विलेज, ये इलीगल है. इट इज़ लीगल, इलीगल, बेटा इलीगल है, क्लियर कट. यू कैनॉट हैव 2 वोटर कार्ड्स. सो दिस शोज दैट गेटिंग अ वोटर कार्ड इज ईजी. हाउएवर अब सब लिंक्ड हो रहे हैं आधार से. ठीक है, तो वो कॉन्टेक्स्ट, तो हर चीज़ के पीछे लूप होल्स तो आ ही रहे हैं, बट ओवरऑल इज बिकॉज इन टर्म्स ऑफ आधार, पीपल हैव सीन आधार डॉग का बन गया है आधार कार्ड. ऐसा भी हुआ है, अलग अलग इश्यूज है. मोबाइल फ़ोन का आधार कार्ड बना हुआ है. तो इश्यूज तो हैं, बट थिंग्स आर बीइंग सॉर्टेड आउट. स्लोली स्लोली ये चीज़ें हट जाएंगी वो. ठीक है, सो बाई कैमरल स्टेट लेजिस्लेचर, ये हेडिंग है. बाईकैमरल स्टेट लेजिस्लेचर. लिखिए, the desirability of a bicameral legislature, the desirability of bicameral state legislature at the state level has been debated since the days of Constituent Assembly, since the days of Constituent Assembly. ठीक है, पोस्ट द क्लास आप 6 वो लिखेंगे. ठीक है, व्हेन यू विल राइट ऑन योर ओन, आंख बंद करके, मीन्स यू विल मेमोराइज एंड देन यू राइट इट लेटर ऑन कि यूपी, बिहार, कर्नाटका, बट उससे पहले महाराष्ट्र को भी. इफ यू गो ज्योग्राफिकली इट विल हेल्प यू, राइट. यूपी है, बिहार है, मे बी बिहार और यूपी, देन महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा. 6 हो गए आपके. ठीक है, 6 हैं ये करंटली. राइट डाउन. To abolish or create legislative council, state needs to pass a resolution. State needs to pass a resolution by majority of total membership of the assembly, and not less than two-thirds of members present, and voting. Not less than two-thirds members present and voting. Full stop. Continue. Then Parliament would pass the law. With simple majority. ठीक है,
Now this is Article 169. So don't get confused regarding the article. We have written is Article 169. इसमें confusion नहीं होना चाहिए इस पे under any circumstance, क्योंकि you have both abolition और creation दोनों के दोनों 169 से होंगे वो, ठीक है। आई टोल्ड यू आंध्र प्रदेश जो था, आंध्र प्रदेश ने 85 में लेजिस्लेटिव काउंसिल हटा दिया था एंड देन लेटर ऑन इट ब्रॉट इन अगेन इन 2007। सो अगर जनरली इट शुड नॉट हैपन स्टेट लेवल पे ऐसा सवाल आ जाए, बिकॉज यूपीएससी डज नॉट आस्क यू एट दिस लेवल, स्टिल यू शुड नो दैट आंध्रा हैड एक्चुअली अबॉलिश द सेकेंड हाउस एंड देन फाइनली 2007 पे, मतलब 85 पे अबॉलिश किया सेकेंड हाउस, बाद में 2007 पे लेके आ गया, ठीक है। And these changes, जो भी ये change होंगे ना, let's say you bring in a second house, you don't bring in a second house, they're not basically deemed to be an amendment of the constitution under 368. I told you there are many features which are flexible, and the flexible feature is that 368 के context में, that they are not deemed to be an amendment under article 368. 368 में नहीं count होते हैं, इसका मतलब simple majority से जाएंगे ये, ठीक है। Right on. Next line पे, a second chamber has always been attractive. A second chamber has always been attractive to those, has always been attractive to those who believe in widening the space, for representative democracy, widening the space for representative democracy. Next line. Its advocates says, SAYS says, wiser counsel from an upper house is needed to temper TEMPER, to temper the unruly behavior, oblique nature of debate in the lower house. Next line. Detractors, DETRACTORS, detractors means those who disagree. Detractors, 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 however, contend that the council is nothing but a body to accommodate various political interests within a party. Next line. A backdoor way into the legislature, for those who lose direct election. Next line. They say that second chamber involves considerable outlay. They say that second chamber involves
considerable outlay, outlay, outlay from the public exchequer, exchequer, public exchequer, 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 public exchequer, on account of the salaries, comma, allowances of members and incidental charges, Next line. They only aid, AID, they only aid party heads, to distribute more patronage, and only help in obstructing or delaying the necessary legislation which the people have given their votes for, Next line. Recent experience suggests even chief minister choose legislative council route when the option is available, Next line. A second chamber may be useful forum to play an advisory role in legislative matters, but there is no consensus even within the state on its necessity. Next line. A parliamentary committee comma, examining the Rajasthan and Assam bills, relating to creation of legislative council suggested that there should be national policy on having a permanent second chamber
on having a permanent second chamber so that there is, or yes, so that a subsequent government cannot abolish it whenever it wants, whenever it wants. Next line. This is a better way to address the issue. This is a better way to address the issue instead of relying RELYING, instead of relying on ad hocism, ADHO, ad hocism, CISM, ad hocism. Full stop, continue. While framing such a policy, it will also have to be decided whether the time and resources involved in having a second chamber is worth it and whether the present scheme of giving representation requires modification. ठीक है? So now we've seen it from both sides. PT से भी देख लिया, मेंस का भी देख लिया. ठीक है? Again, you want to write it down, you should know that State Assembly cannot have more than 500. Cannot have more than 500. ठीक है? MLA cannot be less than 60. This also I have told you clearly, so don't make mistake. Also, सिक्किम के पास 32 नंबर है, 32. सिक्किम के पास less than 60 है. So सिक्किम is 32, Goa is 40, मिजोरम is 40. ठीक है? सिक्किम 32, गोवा 40, मिजोरम 40. ये आपको मैंने बताया हुआ है. ठीक है? सिक्किम, गोवा, मिजोरम. ठीक है? And I have already told you that Legislative Council cannot have more than 1/3, but cannot be less than 40. State level पे और कुछ की ज़रूरत नहीं है in terms for the exam. That does not mean state institutions are not important, but in exam this is what the basic setup is. इसी से सवाल आने वाला है. But one thing you have to memorize, the composition in terms of Legislative Council. देखिए, how many people are nominated by whom. ठीक है? ये बहुत ज़रूरी है याद करना बेटा. देखिए, ये मतलब we are not going to numbers, but ये रट लीजिएगा. जैसे 1/3 shall be elected, 1/12 shall be elected, 1/12 shall be elected, 1/3 shall be elected, and remainder shall be nominated by governor. Remainder 1/6 बचता है. But ये 1/3, 1/6 या 1/12 you have to mug up कि कौन 1/12 है, कौन 1/6 है. Now you will see that, एक आपको पढ़ के बताता हूँ so that later on confusion नहीं हो. जैसे 1/12 shall be elected by electorates consisting of persons who have been for at least 3 years engaged in teaching. मतलब कोई एक स्टेट में, जैसे वेस्ट बंगाल में मान लो सेकेंड हाउस आ गया. सो वेस्ट बंगाल में कोई भी जो 3 साल से पढ़ा रहा हो वो एलिजिबल होगा वोट करने के लिए. ठीक है?
बट नॉट लोअर देन सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, ठीक है। तो देयर आर सर्टन रूल्स, वो पार्लियामेंट वगैरह बता देती है, बट ओवरऑल इज यू हैव टू मग अप दिस कंपोजिशन, 1/3 है कि 1/6 है कि 1/12 है, ये रटना तो आपको पड़ेगा ये नंबर्स। अदर देन दैट डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द स्टेट साइड, बट आई हैव क्लियरली टोल्ड यू legislative assembly, legislative council 3 months, comes back, again passes 1 month, 4 month legislative council can stop it, and later on it is considered as passed. So clearly what it is, that it is a delaying chamber. ठीक है। दूसरा, स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में there are bills which can be reserved by the governor for the president. कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, he can reserve the bills for the consideration of president, even the money bill. एग्जाम के लिए यू विल मग अप कि विच ऑफ दीज बिल्स जो मैंडेटरी रिजर्व करने हैं, मैंडेटरी, जैसे है ना दैट इफ द पोजीशन ऑफ हाई कोर्ट को कोई कॉन्टेक्स्ट में कोई लॉ है जो हाई कोर्ट के पोजीशन को थ्रेटन कर रहा हो, इट हैज़ टू बी केप्ट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये जो चीज़ें हैं याद रख लो, उसके ऊपर है ही नहीं सवाल आप। ठीक है। नाउ next heading is disqualification of members. heading लिखिए disqualification of members. ठीक है। Now, in terms of disqualification, we have defection also. Defection has already been done, so I would not go into defection. उस डोमेन में हम नहीं जा रहे हैं। Disqualification is also done in context of other grounds also. Now, we are only looking at the other grounds, not defection. ठीक है। So, disqualification जो आपने लिखा है उसमें आर्टिकल लिखिए, आर्टिकल 102। ठीक है, आर्टिकल 102। ठीक है, क्लियरली ध्यान से देखिएगा। 102 है, जो भी देखो 102 है, इट वुड बी 191 फॉर स्टेट लेजिस्लेचर जो है। तो 102 जो है वो स्टेट पे होगा 191, सो 103 जो होगा वो 192 है, 105 है तो इट इज़ 194। बट एज ऑफ नाउ हमारे लिए ये दोनों कंसर्न के होंगे, बट वी आर एक्चुअली गोइंग टू डू दिस। फिर रेप्लिकेट होगा यहाँ पे, आई विल शो यू वेयर देयर इज डिफरेंस, थोड़ा फर्क होगा तो बता देंगे वो। ठीक है। नाउ इन दिस we are not supposed to write the other domain in terms of disqualification. We are concerned with office of profit. ठीक है। So office of profit is there in 102 clause 1 sub clause A. 102 clause 1 sub clause A. That is what is office of profit. ठीक है। So 102 clause 1 sub clause A. 102 is talking about disqualification. I will read it so that you get the idea कि disqualification context में क्या है। However, हम लोग सिर्फ office of profit के context में discuss करेंगे, because defection has already been discussed. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो self explanatory है, आपको समझाऊंगा मैं, but office of profit थोड़ा dynamic aspect आएगा। ठीक है। Now, we're talking about that if a person holds any office of profit, ठीक है, व्हाट इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वी वुड सी दैट, इसको हम चेक करेंगे। तो इसको अभी मैं होल्ड पे डाल रहा हूं। इफ पर्सन इज ऑफ अनसाउंड माइंड, इफ द पर्सन इज मतलब दिमाग से पैदल है, थोड़ा पागल टाइप का है, सो अनसाउंड माइंड, तो उसको भी हटाया जा सकता है, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा कोई पागल हो गया है तो। If somebody is undischarged insolvent, bankrupt, भिखारी बन गया है वो, ठीक है, तो ये भी हो गया। सो अनसाउंड माइंड हो गया, दिमाग से पैदल है, इंसॉल्वेंट भिखारी बन गया।
loses his citizenship मतलब goes to takes any other citizenship, or is basically disqualified under any law made by parliament. इसमें RPA आ जाता है, Representation of People Act. Under RPA you will have, जैसे ना राहुल गांधी gets अभी recently he lost his seat, so that is RPA के context में, इसके context में आएगा 102 clause 1 सब clause E. इसके यहाँ से जो पावर ली हुई है, इससे he is disqualified because RPA में लिखा है if somebody gets convicted for more than 2 years then seats चली जाती है वो, तो he got convicted. ठीक है, अगेन पॉलिटिक्स में ज़्यादा ध्यान नहीं देना, पॉलिटी में यू हैव टू लुक इनटू दैट. If a person is disqualified under 10th schedule, so 10th schedule तो हमें देखना नहीं, defection that is already been done. Now we need to concentrate on office of profit. So heading लिखिए office of profit. ठीक है, again summarizing, 102 talks about disqualification of MP, 191 talks about disqualification of MLA. ठीक है, disqualification पे clearly there are few things which are written disqualification wise. इसमें एक मिनट, let me get a seat. Not been well for few days. I don't know, maybe weather is changing or maybe again spirit of COVID, so not sure. Sore throat issue. देखिए, now in context of the disqualification, एग्जाम के लिए कुछ चीज़ें यू हैव टू कीप इन माइंड. जैसे कॉन्स्टिट्यूशन पे इट्स रिटन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. यस, अ पर्सन होल्ड्स द गवर्नमेंट सर्विस कैन नॉट sorry holds office of profit then cannot continue as a, मतलब वो उसी दिन जॉब चली जाएगी if he holds office of profit. If person becomes unsound mind, मतलब कोर्ट बताएंगे कि भाई ये पागल है, वो डॉक्टर बताएंगे बट कोर्ट अप्रूव करेगा. देखो ऐसे है ना, देखो इफ ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड सो डिक्लेयर्ड बाय अ कंपीटेंट कोर्ट, कोर्ट बताएंगे. ठीक है, इफ समबडी इज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, भिखारी हो गया, बिल्कुल प्रूव हो गया, इफ एनी लॉ इज बीन मेड बाय पार्लियामेंट, ओवरऑल इन दीज डोमेन्स वी फाइंड दैट डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा. हाउएवर इसमें कॉम्प्लिकेशन जो है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में है और डिफेक्शन वाला है. डिफेक्शन जो हो चुका है इसके लिए हम जा नहीं रहे हैं, इसमें हम सिर्फ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाले में जा रहे हैं. एज पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के कॉन्टेक्स्ट में जब हम देखते हैं, पहला तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डिफाइंड ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन पे, इट्स नॉट डिफाइंड ओनली. तो व्हेन इट इज नॉट डिफाइंड तो ये क्रिटिसिज्म में आएगा ये कि डिफाइंड नहीं है, तो आप कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में अगर आ जाए आप उसको हटा दोगे. एक मिनट, इसको मैं आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट अगेन कि डिफाइंड नहीं है तो क्या इशू है, बट उससे पहले थोड़ा और चीजें देख लेते हैं. व्हाई गवर्नमेंट सर्वेंट आर नॉट अलाउड फ्रॉम ज्वाइनिंग दी और बिकमिंग पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर. देखिए, गवर्नमेंट is supposed to be held accountable by legislature. Legislature क्या करेगा? Accountability of the executives towards the legislature बढ़ाता है वो. It means legislature should ask them questions, uncomfortable questions उनको पूछना चाहिए. उनको ऐसी जगह लाके खड़ा करना है कि वो कुछ गलत करने की सोचे नहीं. Yes, that's very important. Uncomfortable questions है कि नहीं ये करेंगे तो गलत हो जाएगा, कल को जवाब देना पड़ेगा. ऐसे थोड़ी है कि मीडिया शुड आस्क द क्वेश्चंस. मीडिया लॉट ऑफ टाइम आर गिविंग प्लेटफॉर्म टू द एग्जीक्यूटिव, नॉट मेकिंग देम अनकंफर्टेबल कि ऐसा क्यों हुआ, वो क्यों किया, ये नहीं होना चाहिए था. मीडिया क्वेश्चन पूछती है, क्वेश्चन के बाद एग्जीक्यूटिव जवाब दे रहे हैं, उसके बाद नया क्वेश्चन में लाता है. काउंटर क्वेश्चन टू द क्वेश्चन इटसेल्फ इज नॉट डन. इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म या बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हार्ड हिटिंग जर्नलिज्म में ना एक जो गेस्ट होता है वो अनकंफर्टेबल हो जाता है बहुत ज़्यादा, एंड दैट इज रिक्वायर्ड ताकि एग्जीक्यूटिव कंट्रोल में रहे. इट्स नॉट दैट कि अननेसेसरली उनकी इंसल्ट करनी है, नो, दैट्स आल्सो नॉट राइट. ठीक है, बट कमिंग बैक, वी हैव गॉट कि लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटर कोई भी हो, दे शुड मेक द एग्जीक्यूटिव आंसर.
सवाल पूछने चाहिए। अब आप देखिए, इमेजिन एक IAS ऑफिसर एक MLA बन जाता है, बन तो सकता नहीं है बट इमेजिन करो। ना ही कम्स टू द हाउस एंड हाउस में उसने सवाल पूछा कुछ। वो जो सवाल पूछा है वो अनकंफर्टेबल कर रहा है सरकार को। गवर्नमेंट वुड बी अनकंफर्टेबल बिकॉज दे हैव टू आंसर एनी टाइम समबडी आस्क्स यू क्वेश्चन, थोड़ा अनकंफर्टेबलनेस लगती है। सो दैट पर्सन इज नाउ अनकंफर्टेबल एंड अब आप बाहर आ जाते हो। दैट IAS ऑफिसर कम्स आउट ऑफ द हाउस। उस टाइम पे तो गवर्नमेंट आंसर दे देगी। अब बाहर आते ही सरकार बोलेगी इसको, ही इज आस्किंग लॉट ऑफ क्वेश्चन, ट्रांसफर हिम, इसको तंग करो। So that officer would be transferred to a department जहाँ पे जैसे punishment posting करेंगे, life uncomfortable बनाएंगे, transfers करवाएंगे इधर उधर जल्दी जल्दी कि बहुत तंग करता है, बहुत सवाल पूछता है ना। तो context क्या है? As the government is able to control your behavior outside the house, therefore those people whose behavior can be controlled outside the house, उनको अंदर हाउस मेंबर बनने ही नहीं दिए जाता है। सो गवर्नमेंट सर्वेंट का कॉन्टेक्स्ट में कंट्रोल होता है। दैट डज नॉट मीन्स कि कोई अर्निंग वाला मेंबर MLA नहीं बन सकता। आप बाहर कुछ भी नौकरी कर सकते हो। यू हैव अ शॉप, यू हैव अ मॉल, यू आर ओनर ऑफ एन इंडस्ट्री, कोई दिक्कत नहीं है, आप MP बन सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं है। तो गवर्नमेंट सर्वेंट के कॉन्टेक्स्ट में इशू है। गवर्नमेंट सर्वेंट कुछ भी, जैसे मान लो एक सरकारी स्कूल का पियोन, इवन द पियोन ऑफ अ गवर्नमेंट स्कूल, ही कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शन। हाउएवर पियोन ऑफ अ प्राइवेट स्कूल कैन कंटेस्ट इलेक्शन। तो देयर इज, एक तो ये हम क्लियर हो गया ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का। अब बेसिकली ऑटोनोमी ऑफ लेजिस्लेचर जो है वो उसी को मेंटेन करने के लिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोड्यूस किया था। We've had cases, जैसे जया बच्चन केस। आफ्टर जया बच्चन केस थोड़ा क्लैरिटी ज़्यादा आ गई है ना। जया बच्चन वॉज द हेड ऑफ UP फिल्म इंडस्ट्री या फिल्म बोर्ड की जो थी, वो हेड थी, बना के रखा था। शी वॉज एन MP, सो शी वॉज गेटिंग एन ऑनरेरियम। देखिए, देर इज सैलरी, देर इज रेम्यूनरेशन, देर इज ऑनरेरियम। सैलरी फिक्स्ड अमाउंट होता है कि भाई इतनी मिलेगी मिलेगी, आ रहा है, फिक्स है। रेम्यूनरेशन है, नेगोशिएशन पे डिसाइड होता है कि ठीक है आप कितना, जैसे अटॉर्नी जनरल गेट्स रेम्यूनरेशन, ही डज नॉट गेट सैलरी, अटॉर्नी जनरल तो, ठीक है। बिकॉज सी अटॉर्नी जनरल को सैलरी दोगे तो एक अजीब सी लगेगी सैलरी कि 3 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ सैलरी, ऐसे हो जाएगा उनका। सो द पॉइंट इज एडवोकेट्स एट दैट लेवल कमांड्स डिफरेंट अमाउंट ऑल टुगेदर, एक अलग लीग का अमाउंट डिजर्व भी करते हैं, डिमांड भी करते हैं। जैसे अभी रिसेंटली सम एक्स अटॉर्नी जनरल्स वाइफ और समबडी एल्स मींस एडवोकेट जनरल्स वाइफ या सॉलिसिटर जनरल की, इन्होंने 150 करोड़ का घर खरीदा करीबन अभी पिछले महीने। I'm not saying that's important, but this is only to tell you that somebody buying the house of 150 crore, you can see कि कौन सी किस level की league होती है, you can earn. I'm not saying everything was earned, could have been earned, could have been inherited, but I'm just giving you an idea that remuneration इसलिए अटॉर्नी जनरल को मिलता है क्योंकि उनका लीग अलग आता है, सैलरी नहीं होती है इनकी। अब ऑनरेरियम क्या होता है? ऑनरेरियम इज बेसिकली एक जो आपने एक्सपेंसेस किए होंगे एज ए रिस्पेक्ट, थोड़ा सा अमाउंट दे दिया। जैसे हो सकता है, लेट्स से इफ जया बच्चन इज मूविंग टू, लेट्स से फ्रॉम मुंबई, इफ शी इज मूविंग फ्रॉम हर हाउस टू मे बी UP, शी स्टेइंग इन अ होटल, आना जाना XYZ जो भी है, तो इफ समबडी इज टेकिंग हर सर्विसेज मे बी लाखों रुपए का एक दिन का एक्सपेंस आ जाएगा। मे बी दैट शी मूविंग, तो कम से कम हो सकता है 10 लाख रुपए चार्ज कर ले वो। ऑनरेरियम में क्या होगा? मे बी 50,000 वुड बी गिवन कि ठीक है एज अ टोकन दैट वी आर टेकिंग इट। आपको गाड़ी आ जाएगी लेने के लिए, जाने के लिए, ड्रॉप कर लेगी, अकोमोडेशन हम दे देंगे, एंड दिस इज बेसिक एक्सपेंसेस। शी मे डू इवन मोर एक्सपेंसेस देन व्हाट शी गेट्स। हाउएवर शी वाज गेटिंग ऑनरेरियम
and on top of that she was getting rent free accommodation and a chauffeur driven vehicle. So Supreme Court said that honorarium on top of rent free accommodation and a chauffeur driven car amounts to pecuniary gains. देखो pecuniary मतलब होता है related to money. तो कोई ऑफिस है, इमेजिन, देखिए लेट मी टेल यू कि केस बताता हूँ, नॉट इन रियलिटी. इमेजिन दैट एन ऑफिस हैज़ अ सैलरी ऑफ 1 लाख रुपीज़. कोई एक ऑफिस है जिसमें 1 लाख सैलरी उस पोस्ट होल्डर को मिलना चाहिए. एंड अ पर्सन होल्ड्स, वो आता है और वो होल्ड करता है पोस्ट एंड सेज मुझे पैसा नहीं चाहिए, आई डोंट वांट एनी मनी, आई विल वर्क फ्री ऑफ कॉस्ट. सो द पॉइंट इज वुड दिस ऑफिस बी टर्म्ड एज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट? कि सैलरी 1 लाख रुपए वो ऑफिस दे सकता है. However, the person holding that post is saying, I don't want 1 lakh. I don't want any money. So can that office be termed as office of profit? And the answer is yes, that office can be termed as office of profit. उसका रीजन क्यों है? क्योंकि ये है that the person is not taking money, however the office has the capacity to pay. So it is not seen that if pecuniary gain has happened or not. Pecuniary gains को देखा ही नहीं जा रहा है. देखा जा रहा है कि कितना हुआ ये भी नहीं देखा जा रहा, हुआ है कि नहीं हुआ है. अमाउंट इमटेरियल है. 5,000 रुपये हुआ है कि 50 लाख रुपए हुआ है, इमटेरियल है. pecuniary gain हुआ है कि नहीं हुआ, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट. So overall is, if the person does not even take money but that office has the capacity to pay, then office of profit में वो आ जाएगा. अब जिस दिन an office is declared as office of profit, उसी दिन सीट गायब हो जाती है. However, there are certain posts which are exempted from office of profit. When I say certain posts exempted from office of profit, with this I mean to say, पीटी में सवाल आ सकता है विच ऑफ दीज वुड नॉट फॉल अंडर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. तो जैसे लीडर ऑफ अपोजिशन, उनको कैबिनेट स्टेटस, मिनिस्टर का स्टेटस मिलता है, उनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से हटा रखा हुआ है. ऑफिस ऑफ विप, इनका भी स्टेटस मतलब इनको भी उससे हटा रखा है, मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से. तो ऐसे ऑप्शन आ सकता है, लीडर ऑपोजिशन. सो यू विल टिक दैट यस एग्जेम्प्टेड है. और इफ द क्वेश्चन इज ये कौन सा ऑफिस फंसेगा, आप मना कर दोगे कि ये ऑफिस नहीं फंसेगा बिकॉज इट इज एग्जेम्प्टेड, राइट. डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स 1959 एक्ट, एक एक्ट के थ्रू ये एग्जेम्प्टेड है. चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, चेयर कमीशन फॉर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, चेयर कमीशन फॉर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, ये चारों के चेयरपर्सन जो है इनको एग्जेम्प्टेड है. इसका मतलब एन एमपी कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ एनसीएससी बट कैन बिकम चेयरपर्सन, क्योंकि ओनली द चेयरपर्सन पोस्ट इज एग्जेम्प्टेड, नॉट द मेंबर पोस्ट. ऑल्सो इफ अ पर्सन हैज बीन गिवन कंपनसेटरी अलाउंस, किसी को पैसा दिया हुआ है बट वो सिर्फ कंपनसेटरी अलाउंस है, आना जाना खाना पीना के लिए, then that would not be coming under office of profit. Now in this context, आंध्रा में क्या हुआ था, there was an MP. Now this is a 2020 aspect. आंध्रा से एक MP आते थे दिल्ली, जब भी वो दिल्ली आएंगे he was given a status of special representative of Andhra. Now whenever he was coming, so Delhi में all his expenses were paid by the government, आना जाना रहना खाना पीना. So somebody had complained that this office is office of profit. However, election commission said ये सिर्फ compensatory का aspect है, खाना मिल रहा है, वो आएंगे कुछ तो खाना ही है. He is coming, he is working for the state, state को promote कर रहे हैं अलग अलग जगह पे जाके, तो compensatory allowance है, उन्हें कुछ पैसा नहीं मिल रहा है इसका. So that is not an office of profit. Supreme Court in Pradyut Bardoloi case ना कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं. आई विल मेक यू राइट दोज गाइडलाइंस ऑल्सो, सो दैट आप समझ जाओ ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आएगा कि नहीं आएगा. जैसे इफ द स्टेट हैज़ पावर टू अपॉइंट यू, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आ सकता है. इफ द स्टेट हैज़ पावर टू रिमूव यू, इफ द स्टेट पेज यू, ऐसे कुछ पॉइंट्स आएंगे जिससे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट टर्म हो सकता है. फाइनली अगर हम क्रिटिसिज्म देखेंगे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट्स का,
तो जो कि मेंस का डायमेंशन आएगा, पहला तो डिफाइंड नहीं है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कॉन्स्टिट्यूशन पे। डिफाइंड नहीं होता है तो इसका मतलब इजीली इसका डेफिनेशन को हम प्लस माइनस कर सकते हैं, क्योंकि डिफाइंड ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में। हैड इट बीन डिफाइंड इट वुड हैव बीन टोटली डिफरेंट। दैट कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिफाइंड, सो प्रोसेस इवन टू चेंज एनीथिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इट हैज टू बी डन थ्रू अ स्पेशल मेजोरिटी, बट कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट डिफाइंड इट। एक तो ये स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म है। अनदर एस्पेक्ट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज कि रेट्रोस्पेक्टिव चेंज कर सकते हैं। व्हेन आई से रेट्रोस्पेक्टिव चेंज कर सकते हैं, इमेजिन मान लो जैसे आज है, इमेजिन दैट इन अप्रैल ऑन April 1st an MP loses his seats because it is termed as office of profit। आज मतलब 1 अप्रैल को सीट लूज होगी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में कोई भी जगह पे, मान लो। देन अगर ये स्ट्रॉन्ग MP है और वो लेजिस्लेचर क्या कर रहे हैं, लेजिस्लेचर मतलब लोकसभा राज्यसभा में इनके नंबर्स अच्छे हैं, ये लोग पावर में हैं, तो इसको अमेंड करेंगे। ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो एस्पेक्ट है, इसको जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स 1959 का है, इसको क्या करेंगे, इसको अमेंड करेंगे। RPA को अमेंड करेंगे, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल को मतलब इन दोनों बिल इंट्रोड्यूस करेंगे और अमेंड करेंगे, और बोलेंगे कि ये जो ऑफिस जिससे मतलब ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम 10 years बैक से कर देंगे। तो जब वो एग्जेम्प्टेड है 10 साल पहले से, तो जो 1 अप्रैल का कन्विक्शन आया वो अपने आप हट जाएगा, बिकॉज वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रहा ही नहीं है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आ चुका है इसका। ये पास कर सकते हैं पार्लियामेंट। अब अगर ऐसे पासिंग अलाउड है तो टोटल जो स्कीम है ना वो इनइफेक्टिव है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की। अगर पावरफुल पॉलिटिशियन फंस रहा है उसको आउट करेंगे, अगर पावरफुल नहीं फंस रहा है तो हो सकता है ना आउट करें, राइट। तो ये मेंस का डोमेन है बेटा, ठीक है। नाउ कोई क्वेश्चन क्या है, few months ago IAS officer from Bihar criticized government, she may suspended, where are accountability of government? If an IAS officer is criticizing the government, स्टेट IAS ऑफिसर स्टेट में है, स्टेट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो उनको सस्पेंड किया जा सकता है। सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स, यस, कंडक्ट रूल के हिसाब से नो, शी इज़ नॉट सपोज टू डू दैट। शी कैन कंप्लेन टू द अथॉरिटीज़, वो लिख सकती हैं। शी कैन राइट टू द CM, शी कैन कंप्लेन टू DOPT बिकॉज द अल्टीमेट इफ शी इज़ बीइंग हरास्ड, वो CM साहब को लिख सकती हैं। एक प्रोसीजर बना हुआ है, बट ओपन प्लेटफॉर्म पे नो, ठीक है, फिर क्योस हो जाता है। सो देयर आर सर्टन रूल्स विच नीड्स टू बी फॉलोड, ठीक है। लिखिए बेटा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लिखिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लिखिए। देयर शुड नॉट बी एनी कॉन्फ्लिक्ट, देयर शुड नॉट बी एनी कॉन्फ्लिक्ट between the duties and the interest of an elected member and to see that the elected member carries on his duties freely and fearlessly without being subject to government pressure, Next line. The provision is thus designed to protect the democratic fabric of the country from being corrupted by
from being corrupted by the executive patronage, corrupted by the executive patronage. Full stop. Next line. It secures independence. It secures independence of legislators. It secures independence of legislators. Next line. Office should be such. Office should be such to which some pay, to which some pay, comma, salary is attached, to which some pay, comma, salary is attached. Next line. If there is really a gain, if there is really a gain, G-A-I-N, a gain, comma, its quantum or amount, its quantum or amount is not material. Its quantum or amount is not material. Next line. In Jaya Bachchan case, in Jaya Bachchan case, ये 2006 का है. In Jaya Bachchan case, it was held that decisive factor in determining whether one is holding an office of profit, whether one is holding an office of profit or not, comma, is whether the office is capable, is whether the office is capable of yielding a profit or pecuniary so yielding a profit or pecuniary gain and not whether pecuniary gains is in fact received or received negligibly by the individual holding that office. Next line. It was further held that payment of honorarium, Honorarium, payment of honorarium in addition to daily allowances in nature of in addition to daily allowances in nature of
rent-free accommodation and car, in nature of rent-free accommodation and car at state expense are clearly in nature of remuneration and a source of pecuniary gain and hence office of profit next line, ये एक दो लाइन के बाद लिखिए, under the parliament ब्रैकेट में लिखिए, within the bracket write down prevention of disqualification, within the bracket write down prevention of disqualification, bracket close, Act 1959, some offices are exempted from disqualification. ठीक है, पॉइंट में ये लिखेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली पीटी में इफ एट ऑल समथिंग इज कमिंग रिलेटेड टू ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यहाँ से ऑप्शन आ सकता है. सो राइट डाउन पॉइंट. आई एम टॉकिंग अबाउट द एग्जेम्प्टेड पॉइंट्स. ठीक है, एग्जेम्प्टेड ऑफिसेस. फर्स्ट पॉइंट इज लीडर ऑफ अपोजिशन. नेक्स्ट इज whip. Next point is chairperson of NCSC, NCST, NCW, NCM. ये सब all these chairpersons, National Commission for Minorities, National Commission for Women, National Commission for Scheduled Tribe, National Commission for Scheduled Caste. ठीक है, so all these things, ये be careful, these are chairpersons, not members. एग्जाम में if at all members are used, exempted नहीं है वो. Next point, office where the holder, ये भी exempted point है, लिख रहे हैं हम लोग. Office where the holder is not entitled to any remuneration, other than compensatory allowance. ठीक है, एक दो लाइन के बाद लिखिए, इन प्रद्युत बोरदोलोई केस 2001, Supreme Court outlined few broad principles for determining whether an office attracts the constitutional disqualification, लिखिए पॉइंट में,
whether the government exercises control over appointment, whether the government exercises control over appointment, comma, removal and performance of the function of the office. Next point, office has any remuneration, office has any remuneration attached to it, office has any remuneration attached to it. Next point, whether the body in which the office is held has government powers, example, granting licenses. Last point, whether the office enables the holder to influence by way of patronage, ठीक है? So if at all somebody is falling into this category, yes, office of profit may be counted. However, it should not be so complicated. Exam के लिए वही whip, the leader of opposition, all these things would come as an option. वैसे देखा जाए, अब minister office is also exempted from office of profit. Minister को भी exempted है, but minister के लिए constitution में ही mentioned है. Let me show it to you. For the purpose of this clause, basically Article 102, Clause 1, a person shall not be deemed to hold office of profit only because he is a minister. ठीक है? So if somebody is a minister, then that person is by default influenced by the government because he is the government. Still ministers are exempted under office of profit, but ये constitution पे exempted है, एक्ट पे नहीं. एक्ट पे तो बाकी जो मैंने पॉइंट्स बताया वो है. ठीक है? सो देयर शुडंट बी एनी मिस्टेक. नाउ so we've got most of the question from Bishwajit. Now we've got from Nayan also. Good. Now sir, why government school teachers are allowed to contest election? Government school teachers beta are not allowed. Government school teacher office of profit में आएगा. And if a teacher is elected, what will happen to the salary they will receive as a teacher? No, better clear cut. Government school teacher, ये office of profit में आएगा ही आएगा. Clear cut. Government school teacher को पूरा control करती है government. Therefore ये तो example मैंने बताया था. Government school teacher cannot contest. Private school teacher कर सकते हैं. Government school teacher नहीं कर सकते. ठीक है? Office of profit में आएगा. They'll be out. जिस दिन पता लग गया कि they are government school teacher, out. Clear cut. हाँ, प्राइवेट स्कूल टीचर है, देन यस दे कैन इवन गेट सैलरी. प्राइवेट स्कूल टीचर की जो सैलरी है वो भी उनको मिल सकती है. वो ये कॉन्टेक्स्ट में वो जाएंगे जब उनके पास फ्री टाइम है तो वहाँ जा सकते हैं. प्राइवेट बिजनेस अलाउड होता है वो. ठीक है, कोई उसमें दिक्कत नहीं होती है. बेसिक एस्पेक्ट है कि सरकार को कंट्रोल नहीं करना चाहिए. नॉट दैट अदर सोर्स ऑफ इनकम शुड नॉट बी देयर. ऐसे तो कोई नोबडी कैन हैव बिजनेस, को नोबडी वुड बी एबल टू डू बिजनेस. ठीक है, सरकार कंट्रोल नहीं करना चाहिए. एक हेडिंग लिखिए, सब हेडिंग क्रिटिसिज्म. राइट ऑन क्रिटिसिज्म. राइट ऑन क्रिटिसिज्म में लिखिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. ऑफिस द एक्सप्रेशन, क्रिटिसिज्म में लिखिए द एक्सप्रेशन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. द एक्सप्रेशन ऑफ, लिखिए द एक्सप्रेशन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट
The expression of office of profit is not defined by the Constitution. The expression of office of profit is not defined by the Constitution. Full stop, continue. It means the constitutional framework, it means the constitutional framework itself provides, the constitutional framework itself provides overriding powers, itself provides overriding powers to executive, overriding powers to executive to exempt any office, to exempt any office for the purpose of Article 102, for the purpose of Article 102 and 191, for the purpose of Article and 191. लिखिए, नेक्स्ट टाइम लिखिए, as soon as a member comes to hold, as soon as a member comes to hold an office of profit, he shall be disqualified, he shall be disqualified from the very moment, he shall be disqualified from the very moment, full stop, continue. The effect of assuming, the effect of assuming, the effect of assuming in such a situation, the effect of assuming in such a situation where the parliament has, where the parliament has power to exempt the office, power to exempt the office retrospectively, power to exempt the office retrospectively, makes the whole scheme ineffective, makes the whole scheme ineffective. ठीक है, makes the whole scheme ineffective. ये क्यों है? क्योंकि let's say X office है, it comes under office of profit, they will change the RPA डिस्क्वालिफिकेशन पे 1959 की जो एक्ट में आएगा डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, इसको चेंज करेंगे रेट्रोस्पेक्टिवली से एंड एक्स को बोल देंगे नो नो एग्जेम्प्टेड ऑफिस है. सो दिक्कत है. दैट इज ऑल्सो अ क्रिटिसिज्म. Still talking about office of profit, however, now we need to know about and the main topic was disqualification of members. I've told you everything was related to disqualification of members, but अलग से जो हमें सीखना था, that was office of profit. बाकी सब बता दिया है. डिफेक्शन यू हैव ऑलरेडी डन, राइट. नेक्स्ट लाइन में लिखिए आर्टिकल 103. लिखिए इसमें डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट is decided by president, is decided by president, underline कर लो president, who shall consult election commission, who shall consult election commission and act accordingly, who shall consult election commission and act accordingly. ठीक है, कोई सवाल तो नहीं है? नहीं है, ठीक है. सो शैल कंसल्ट ईसी एंड शैल एक्ट अकॉर्डिंगली. इससे क्या समझ में आता है? देखिए, डिस्क्वालिफिकेशन ड्यू टू डिफेक्शन इज स्पीकर. डोंट मेक दैट मिस्टेक. वो स्पीकर के साथ है, स्पीकर विद डिफेक्शन एस्पेक्ट. अदर एनी अदर फॉर्म्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन दैट इज विद द प्रेसिडेंट. हाउएवर प्रेसिडेंट जो होते हैं, देखो ये 103 में लिखा तो हुआ है ये. If any question arises as to whether a member of either House of Parliament
has subject to become or has become subject to any of the disqualification mentioned in Article 102, the question shall be referred to the, yes, basically the question shall be referred for the decision of the President and his decision is final. But you will notice यहाँ पे क्या लिखा है? Before giving any decision on any such question, the President shall क्या हो गया? Binding हो गया. So President shall obtain the opinion. It means mandatory है. The President shall consult the EC and shall act accordingly. It means that the President has to act as per Election Commission. जो बोला है वही करना पड़ेगा. There shouldn't be any confusion. Now, मैंने आपको बताया था 102 जो है वो 191 है, 103 जो है वो 192 है. तो आपको कुछ दिखा रहा हूं मैं 192 पे. देखिए 102 था, ये 191 है. 102 एमपी के लिए, 191 एमएलए के लिए. ठीक है, तो एमएलए हो या लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, डोंट वरी, सेम थिंग है उसमें डिस्क्वालिफिकेशन पे. ठीक है, सेम पॉइंट आ रहा है. ठीक है, नाउ यू विल नोटिस यहां पे आता है, वहां पे क्या लिखा था? प्रेसिडेंट जो कंसल्ट करेंगे, राइट? तो अगर एमएलए या एमएलसी डिस्क्वालीफाई हो रहा है तो अच्छा डिसीजन, हाँ ये है, एमएलए या एमएलसी डिस्क्वालीफाइड हो रहा है तो पहले तो गवर्नर करेगा ये. ठीक है, सो डोंट थिंक हेयर ऑल्सो प्रेसिडेंट कम्स इनटू द पिक्चर. नो, यहाँ पे गवर्नर वुड कम इनटू द पिक्चर. तो एक चीज ये क्लियर की हुई है, गवर्नर इज देयर and governor is also consulting Election Commission of India. It's not that governor is consulting state election commissioner. No, governor is consulting Election Commission of India. ठीक है, तो you want to write 192, तो 192 आर्टिकल, अगेन 192 ऐसा क्वेश्चन में नहीं आ रहा है कि व्हाट इज 192, सो यू शुड नॉट नो इट बाय आर्टिकल. 102, 191 ठीक है, इतना काफी है. 103 decent enough if you know that, but 192 not required in terms of number, but in terms of concept, yes, you should know that एमएलए अगर डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं डिफेक्शन से तो स्पीकर आ जाएंगे. एंड देखिए, अगर पार्लियामेंट में भी ना अगर डिफेक्शन आ रहा है तो डिपेंड है, राज्यसभा है तो चेयरपर्सन आ जाएंगे. स्पीकर नहीं डिसाइड करेगा राज्यसभा के मेंबर का डिस्क्वालिफिकेशन ऑन डिफेक्शन, बिकॉज स्पीकर हैज नथिंग टू डू विद राज्यसभा. हम लोग जनरली स्पीकर 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 10 बार बोलते हैं रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन, रिलेटेड टू डिफेक्शन, सो पीपल अज्यूम इट दैट स्पीकर ही आएंगे हर केस में. नो, तो वैसे ही यहाँ पे स्पीकर आ जाएंगे, डिपेंड कौन सा हाउस है उसके हिसाब से हेड कर लेंगे. इफ इट इज रिलेटेड टू डिफेक्शन, if it is not related to defection, then it is in context of the governor आएंगे and governor बताएंगे कि कौन करेगा ये की चीज़ है. ठीक है, मतलब कौन करेगा, मतलब गवर्नर would decide but would consult the election commission of India. I hope there is no confusion. ठीक है, now most of the big topic in terms of parliament are over. However, one of the biggest topic in context of parliament is parliamentary privilege. ठीक है, हेडिंग लिखिए पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, अलग पेज में लिखिएगा पार्लियामेंट्री प्रिविलेज. ठीक है, हेडिंग इज पार्लियामेंट्री प्रिविलेज. हमारा डिस्कशन आर्टिकल 105 में हो रहा है. ये
ठीक है। सो डीलिंग विद आर्टिकल 105 मतलब ना, और कुछ क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 105 here you will find questions in context of PT as well as means, दोनों के कॉन्टेक्स्ट में आपको सवाल मिल जाएंगे 105 से आपके पास, ठीक है। Now when we look into the questions in terms of मतलब I will not be able to divide, क्या है सवाल, Is MP from upper house exempted from office of profit? नहीं बेटा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला है ना बेटा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो डिवाइड ही नहीं किया लोकसभा या राज्यसभा में, ठीक है विश्वजीत बेटा, वी हैव नॉट डिवाइडेड इट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो कोई भी हो सकता है ना, लोकसभा राज्यसभा, तो आइदर इफ इट इज ओनली लोकसभा तो वो मेंशन्ड होएगा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम लोकसभा, बट ऐसा तो है नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों इंक्लूडेड है। नाउ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, इसको पीटी मेंस दोनों डोमेन में आ सकता है। इसका मेंस का सवाल थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है व्हेन यू आर आंसरिंग इस मेंस में एनालिटिकल, तो इवन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली कैसे इसको करते हैं। सो वंस वी विल राइट यू विल गेट द आइडिया, थिंग्स वुड बिकम वेरी सिंपल। सो नाउ आई विल टेल यू फ्यू थिंग्स एंड देन उसके बाद हम लिखेंगे। देखिए पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो है, जो भी मैं बोल रहा हूँ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, जनरली आप मान के चलेंगे कि वो स्टेट के लिए भी है। जैसे एक टर्म यूज करते हैं कभी कभी, एग्जाम के लिए नहीं बट एक टर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो कभी कभी बोलते हैं, एक टर्म आता है म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। अगेन एग्जाम में इट्स नॉट गोइंग टू कम कि व्हाट डू यू मीन बाय म्यूटेटिस म्यूटेंडिस, और इट शुड नॉट कम, कोई मतलब नहीं है इसका इस कॉन्टेक्स्ट में। हाउएवर mutatis mutandis मतलब if I say something for this, it is applicable for others also. It means if I say that parliamentary privilege, इसका मतलब MLA को भी privilege है, that is, सिर्फ हम parliamentary privilege बोले जा रहे हैं बार बार, that does not means MLA को नहीं है privilege। जैसे 102 जो है वो mutatis mutandis है 191 के लिए भी, अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यहाँ है तो वहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ अनसाउंड माइंड है वहाँ पे भी नहीं कर सकते हो। तो आप, और बहुत बार होगा ऐसे जजमेंट हाई कोर्ट के, सॉरी एमएलए के कॉन्टेक्स्ट में आया होगा, वो ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि भाई वो स्टेट लेवल पे कर रहा है, वो एमपी नेशनल लेवल पे कर रहा है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। Now another is Rahul Gandhi's recent issue comes under the defamation case. Is it that it means it should come under 103? देखिए बेटा, आर्टिकल राहुल गांधी केस 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई उसके कॉन्टेक्स्ट में है। देखिए 102 clause 1 sub clause E, if he is so disqualified under any law made by parliament, तो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया आरपीए, राइट, तो आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, इस कॉन्टेक्स्ट में यस वो इस कॉन्टेक्स्ट में आ रहे हैं। हु विल डिसाइड? प्रेसिडेंट, सही है, 103 डिस्क्वालिफिकेशन आएगा। बट अगर आप देखेंगे if any question arises as to whether a member, अगर कोई confusion है, अगर क्वेश्चन आता है कि भैया वो फॉल कर रहा है इसके लिए कि नहीं फॉल कर रहा है, if there is any issue, if at all, then the president would be asked. However, in case of Rahul Gandhi, the system is saying कि भाई कोई है ही नहीं, मतलब कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, क्लियर कट है, आउट करो उनको, राइट। सो इट शुड बी 103 डिसाइडेड आना चाहिए इफ देयर इज अ कंफ्यूजन। सो कंफ्यूजन है कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो आगे प्रेसिडेंट के पास चले जाएंगे। इफ देयर इज नो कंफ्यूजन तो फटाक करके। सो पॉइंट इज इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस, तो द गवर्नमेंट इज सेइंग देयर इज नो क्वेश्चन, द पर्सन इज क्लियरली आउट। नाउ when we talk about parliamentary privilege, ये मतलब एमएलए को भी अपनी प्रिविलेज होगी।
Parliamentary privilege में we'll see a lot of factual things. When we look at the rights, fundamental rights in context of parliamentary privilege, when we talk about codification of parliamentary privilege, ठीक है, at that time that is more towards or more from the main side. However, बाकी सारा डोमेन पीटी टाइप में भी या पीटी साइड पे भी बहुत फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आ जाएगी. When we talk about the parliamentary privilege, देखिए पार्लियामेंटेरियंस को, अगर पार्लियामेंटेरियंस में बोल रहा हूँ एमएलए से कॉन्टेक्स्ट भी आ जाएगा. दे बीन गिवन समवॉट वाइडर पर्सनल लिबर्टी, इनको ज़्यादा कुछ, इनको अलग लेवल पे टेस्ट किया जाता है, मतलब इनको हायर लेवल पे डाला हुआ है. व्हेन व्हाई एम आई सेइंग हायर लेवल पे, जैसे वॉट एवर दे से, वो कुछ भी हाउस के अंदर बोले, कुछ भी, इट इज़ नॉन एक्शनेबल इन कोर्ट. वो बात करें, मतलब लेट्स से डिफेम करें, इफ टुडे दे स्टार्ट स्पीकिंग एनीथिंग विद इन द हाउस अगेंस्ट एनीबडी, तो डिफेमेशन केस कैन नॉट बी फाइल्ड. देखिए पार्लियामेंट के ऊपर अपना रिस्ट्रिक्शन तो है, पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्कस द कंडक्ट ऑफ द जजेस, वो बात तो सही है. आर्टिकल 121 टॉक्स अबाउट पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्कस द कंडक्ट ऑफ द जजेस अंटिल रिमूवल प्रोसीडिंग इज नॉट इनिशिएटेड. एंड इवन जुडिशरी को भी बार किया हुआ है. आप देखो, मैं आपको दिखाता हूं. ये देखिए, रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट. सो जनरली पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस का कंडक्ट डिस्कस नहीं कर सकती, और स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो भी डिस्कस नहीं कर सकती है हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट का. सो डोंट थिंक यहाँ पे ओनली सुप्रीम कोर्ट की बात हुई है. पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्कस द कंडक्ट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. लाइकवाइज एमएलए आल्सो, द लेजिस्लेचर आल्सो कैन नॉट डिस्कस द कंडक्ट ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. नहीं कर सकते जजेस इनके बारे में. मतलब पार्लियामेंट में जनरली रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, उनको ज़्यादा पावर दी हुई है, बट ये एक पावर दी हुई है, मतलब रिस्ट्रिक्शन है. तो दिस एक्चुअली इंश्योर्स ऑटोनोमी. ये ऑटोनोमी ऑफ जुडिशरी के कॉन्टेक्स्ट में जाता है ये, ठीक है. इफ़ यू नोटिस व्हेन वी डिड आर्टिकल 146 के कॉन्टेक्स्ट में व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तब हमने ये पॉइंट लिखा हुआ है इसमें. यस, वी हैव रिटन दैट. नाउ पार्लियामेंट में रिस्ट्रिक्शन है तो कोर्ट पे भी रिस्ट्रिक्शन कुछ डाल दिया है. कोर्ट पे क्या डाला है, नेक्स्ट आर्टिकल पे डाला. देखिए यहाँ पार्लियामेंट पे डाला है, यहाँ कोर्ट पे डाला है. कोर्ट पे क्या डाला है कि कोर्ट नॉट टू इंक्वायर इनटू एनी प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट. कोर्ट जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स है उसमें नहीं जाता है, ठीक है. किस में नहीं जाएगा, इररेगुलरिटी, ठीक है. कोई इररेगुलरिटी हुई है वो बात अलग है, इशू चला जाएगा कोर्ट में, मैं बताता हूँ कैसे. बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, यू इफ द स्टेटमेंट इज ऑन एनी इरेगुलरिटी ऑफ द प्रोसीजर, द कोर्ट्स कैन नॉट इंक्वायर. येस, हाउएवर इलीगैलिटी में क्वेश्चन कुड बी डन. अगर इलीगल कुछ हो गया है तो क्वेश्चन कुड बी डन, मतलब कोर्ट जा सकता है. इरेगुलर हुआ है तो कोर्ट्स नहीं जाएगा. अब बात ये आती है कि ये प्रोसीजर जो चेंज हुआ है इरेगुलर है कि इलीगल है, ठीक है. इरेगुलर है कि इलीगल है, अगर यही सवाल है तो वो डिसाइड कौन करेगा, वो फिर से जुडिशरी डिसाइड करेगी. सो मीन्स पीपल कैन एक्चुअली गो टू द कोर्ट सेइंग दैट दिस इज इलीगल प्रोसीजर. हाउएवर कोर्ट में लेटर ऑन से नो दिस इज इरेगुलर प्रोसीजर, आप कर लो जो करना है. बट कोर्ट में ऑल्सो टर्म इट एज इलीगल. बट इरेगुलर प्रोसीजर पे है, कोर्ट्स नहीं जाएगा. एग्जाम के लिए इतना काफ़ी याद करना. आओ, जैसे एग्जाम्पल है मॉर्निंग 9 o'clock इफ दे आर सपोज टू आस्क क्वेश्चन आंसर राउंड होना चाहिए, बट वो बोल दे कि कल को शाम को होगा 6 बजे क्वेश्चन आंसर राउंड. इरेगुलर हो गया प्रोसीजर, सुबह की जगह शाम, कोई दिक्कत नहीं है. डे आफ्टर टुमारो दिल से 4 दिन क्वेश्चन आंसर राउंड नहीं रहेगा, कर सकते हैं. इरेगुलर प्रोसीजर, ठीक है. बट इलीगल एस्पेक्ट में नहीं चले जाएंगे. समथिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि ये अपना आप ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, नहीं नहीं नहीं, ठीक है. बिल का प्रोसीजर है वो भाई पास होगा, ये स्टेज जाएगा, वो बोलेंगे नहीं नहीं हम कोई स्टेज नहीं करेंगे, हम बिल लेके बस भाग जाएंगे राज्यसभा तो बिल पास हो गया. दैट इज इलीगल. द पॉइंट इज एग्जाम के लिए कीप इन माइंड दैट
courts are also restricted into going into the parliament. ये हमें point चाहिए होगा when we are discussing the codification of parliamentary privilege. ठीक है? Protection is also given to the officers of the and the members जो पार्लियामेंट के होंगे ना. नो ऑफिसर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनको संविधान ने पावर दिया हुआ है पार्लियामेंट के बिजनेस कंडक्ट करने का, उसको कोर्ट नहीं देखेगा. उसको कोर्ट वुड नॉट गो इनटू दैट डोमेन. सो स्पीकर व्हाट इज स्पीकर इज डूइंग, स्पीकर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है तो वो उस पर कोर्ट नहीं जाएंगे. दैट डज नॉट मीन स्पीकर इफ डूइंग समथिंग इलीगल फिर सवाल नहीं आएगा. नहीं, फिर तो आ जाएगा ये. देखिए स्पीकर अगर आप समझो राजस्थान स्पीकर के लिए कुछ बोल दिया है, सो डोंट कि ये देखो ये पावर आपके पास नहीं है. सो डोंट थिंक दैट इज एप्लीकेबल ऑन द स्पीकर ऑफ राजस्थान. इट इज एप्लीकेबल ऑन स्पीकर ऑल स्पीकर्स इन इंडिया इंक्लूडिंग लोकसभा. सब पे एप्लीकेबल होता है. व्हेन आई से इंक्लूडिंग लोकसभा प्रोवाइडेड वो चीज़ उसके लिए ना दी हो कि ये लोकसभा का एमपी स्पीकर कर सकता है, बट ऐसा कुछ अलग नहीं होता है. सेम ही पावर होती है, बट वो नेशनल लेवल के कॉन्टेक्स्ट में हो रहा था, यहाँ पे स्टेट लेवल के कॉन्टेक्स्ट में. नाउ इन टर्म्स ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज वी फाइंड दैट एक्स्ट्रा पावर तो दी हुई है. दे कैन डिफेम एनीबडी. वैसे करेंगे तो दूसरे के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है वैसे, बट दे वाई वुड दे एक्चुअली डिफेम एनीबडी. बट चलो उस पॉइंट को लेटर ऑन देखते हैं. बट इससे पहले इफ यू नोटिस पर्सनल लिबर्टी पर्सनल फ्रीडम ज़्यादा दी हुई है. मैंने ऐसे ज़्यादा दी हुई है इन दिस सेंस 40 days बिफोर द सेशन and 40 days after the session they cannot be arrested on civil charges. Yes, MP MLA cannot be arrested on civil charges. हाँ, डोंट थिंक कि क्रिमिनल पे नहीं कर सकते. क्रिमिनल, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, प्रिवेंटिव डिटेंशन, इस पे अरेस्ट किया जा सकता है. ठीक है. सो जस्ट अगर स्टेटमेंट आती है कि नो एक्शन कैन बी टेकन 40 days बिफोर द सेशन और विद इन द 40 days ऑफ द सेशन, तो नहीं वो नहीं कर सकते हैं. बट ओनली इन सिविल केसेस, क्रिमिनल, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकते हैं. प्रिवेंटिव डिटेंशन में don't make a mistake when or if a question comes, can a person who is in jail vote? And the answer is no. However, somebody who is detained under preventive detention can vote. वो vote कर सकते हैं preventive detention वाले, but वो EVM के through नहीं जाएंगे. वो they will not vote through EVMs. They will vote through normal, basically ballot box के through वो vote करेंगे, कागज के through vote करते हैं. ठीक है. लिखिए, थोड़ा लिखिए बेटा, उसके बाद आगे चलते हैं. हेडिंग पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है. और पता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज सबको अवेलेबल है. दोज हु आर अलाउड टू सिट एंड टॉक इन पार्लियामेंट. इट मीन्स इट इज अवेलेबल टू अटॉर्नी जनरल ऑल्सो. हाउएवर, because of this, don't think that the president is also getting parliamentary privilege. No, president does not get parliamentary privilege. अब बात आती है कि वाई प्रेसिडेंट इज नॉट गिवन पार्लियामेंट्री प्रिविलेज. प्रेसिडेंट के पास इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है. हेयर तो इम्यूनिटी क्या है, सिविल केसेस में अरेस्ट नहीं हो सकते. प्रेसिडेंट तो इवन क्रिमिनल केसेस में नहीं हो सकता. ही कैन इवन किल पीपल एंड नो एक्शन वुड बी टेकन इन टर्म्स ऑफ व्हेन ही इज देयर इन द ऑफिस. तो वो अलग लेवल की इम्यूनिटी है. पार्लियामेंट्री प्रिविलेज बहुत छोटी है उनके लिए. बट एग्जाम के क्वेश्चन तो आ सकता है, president are given, anybody who's allowed to sit and speak in the house gets parliamentary privilege. Yes. फिर आ सकता है president gets parliamentary privilege. No. लिखिए, statement लिखिए आप. Write down. Parliamentary privileges are available. Parliamentary privileges are available not only to the members of a house, not only to the members of a house, member of a house, but also to those, but also to those, but also to those who are under the Constitution, who are under the Constitution, entitled to speak and take part in the
and take part in the proceeding of a house or any of its committee Next line, parliamentary privileges are available to Attorney General but not to President. Next line, MPs have been given somewhat wider personal liberty and freedom of speech than an ordinary citizen enjoys, for the reason that a house cannot function effectively without the unimpeded unimpeded and uninterrupted use of their service. ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या सवाल है। सर, वेस्ट बंगाल हैज़ मेनी एक्टर्स। यस, बंगाल बहुत अच्छे एक्टर्स भी हैं बेटा वेस्ट बंगाल में, तो ठीक है। हु आर नाउ MP, बढ़िया है और अच्छी बात है। एंड आर स्टिल एक्टिवली वर्किंग इन फिल्म, और बढ़िया बात है। एंड ऑल्सो प्रोड्यूसिंग देम, ग्रेट, विच आर मेकिंग प्रॉफिट्स, वेरी गुड। इसमें तो और अच्छी बात है बेटा, एक तो वेस्ट बंगाल से हैं, फिर मूवी भी बना रहे हैं, एक्टिंग भी कर रहे हैं, मूवी बना रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं। इसमें दुखी क्यों हो रहे हैं हम, हैं विदिशा बेटा, क्या इशू है? Thus we can say that they are associated with office of profit. No, कहाँ है बेटा? मूवी कोई सरकार थोड़ी बना रही है, गवर्नमेंट का पब्लिकेशन डिवीजन थोड़ी वो हेड कर रहे हैं। गवर्नमेंट का पब्लिकेशन डिवीजन हेड करेंगे फिर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आएगा। मैंने बताया है कि यू कैन ओपन अप अ शॉप, यू कैन डू प्राइवेट बिजनेस, ये भी तो बिजनेस ही है ये, राइट? देयर आल्सो पब्लिक सेइंग देयर एक्टर्स फर्स्ट एंड देन देयर पॉलिटिशियन। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो एक्टर पहले, पॉलिटिशियन बाद में। कहीं नहीं लिखा कि पहले पॉलिटिशियन होना है बाद में एक्टर होना है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। So why are their membership parliament not cancelled? बेटा clear cut. I hope you got the point that गवर्नमेंट सर्वेंट होना है तब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आएगा। अर्निंग, पैसा कमाना एंड गवर्नमेंट सर्विस दोनों अलग है। कोई मूवी, मान लो कोई ओलंपियन है, ठीक है, वो ओलंपिक्स में खेल रहा है, पैसे भी कमा रहा है करोड़ों, वो MP भी है, कोई दिक्कत नहीं है, हजारों करोड़। विजय माल्या वॉज एन MP, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, उसका तो भाई हजारों करोड़ का बिजनेस था, ठीक है। तो अर्निंग फ्रॉम अदर सोर्सेज कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है कि दैट कैन नॉट बी, पर्सन हैज टू बी, मतलब इट कम एज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इट मीन्स कोई एक MP है तो वो कहीं और से सोर्स ऑफ इनकम नहीं रख सकता है। नो, कितने MP एडवोकेट्स हैं, बहुत ज़्यादा MP एडवोकेट्स होते हैं, वो केस लड़ते रहते हैं रेगुलरली, ठीक है। ज़्यादातर ना स्पोक्स पर्सन्स ऑफ मोस्ट ऑफ दी पॉलिटिकल पार्टीज कोशिश करते हैं एडवोकेट्स रहे वो, क्योंकि एडवोकेट्स नोज किसको कैसे कहाँ पे ट्विस्ट करना है, कैसे बोलना है। आई एम नॉट सेइंग एवरीबडी इज एन एडवोकेट, हाउएवर लॉट ऑफ टाइम गुड स्पोक्स पर्सन पता करते हैं तो एडवोकेट होते हैं वो कहीं ना कहीं पे, और एनीबडी इज अ गुड स्पीकर वैसे तो, ठीक है। तो आई होप मेरा इसका ये पॉइंट क्लियर है।
नेक्स्ट क्या है सर, इज द चेयरपर्सन ऑफ एनसीबीसी ऑल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन अंडर प्रिवेंशन। बेटा मैं यही पॉइंट आने वाला था कि you will check the NCBC because NCBC was added up later on. जनरली NCSC का जो है रेप्लिका होता है NCST। अगर NCSC में है NCST है तो सेम रेप्लिका NCBC भी आना चाहिए, ठीक है। 338 रेप्लिका इज 338 कैपिटल ए, सिर्फ टर्म क्या है वहाँ पे SC है तो यहाँ ST है। 338 कैपिटल बी, उधर ST है तो यहाँ BC है, राइट। सो लॉजिकली इट शुड बी देयर। However, I wanted to actually क्लास ब्रेक से पहले I was supposed to tell you this only कि आप चेक करेंगे इसको, ठीक है। सो वाई वुड दे रिमूव दिस पर्सन कि भाई एनसीबीसी को आउट क्यों रखेंगे वो, दे वुड लाइक दैट पर्सन, वो भी एक कोई बैकवर्ड क्लास से कोई होंगे एमपी, उनको बना देंगे, ठीक है। नाउ देखिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के ना एस्पेक्ट्स हैं इंटरनल एक्सटर्नल, मतलब हाउस एक्शन ले सकता है अंदर के बिहेवियर के लिए। बात ऐसा करो, कुछ लाइन लिख लो, उसके बाद ना ब्रेक के बाद आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। लिख लो बेटा, राइट ऑन। privileges of house have two aspects. Privileges of house have two aspects, external and internal. Privileges of house have two aspects, external and internal. Full stop, continue. They refrain anybody from outside the house to interfere with its working. Next line. The privileges also restrain the members of the house from doing something which may amount to an abuse of their position. ठीक है। देखो बेटा, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज वी आर डूइंग आर्टिकल 105. We have not yet gone deeper inside the aspect that we'll do. ब्रेक के बाद करेंगे बेटा वो हम लोग, ठीक है। So we will continue. Office of Profit most probably should be over. नहीं ख़त्म होगा तो कल सुबह कल हो जाएगा in terms of Office of Profit, and then we'll see some financial aspect also related to the Parliament, and with that Parliament would be over, and then we have the Panchayati Raj institution. So 2 दिन में all the topics should be getting over, ठीक है। और it may happen that even कल भी हो सकता है, we'll see. Everything depends on how many questions do you ask. Everything उसी पे dependent होता है, ठीक है। So we'll catch up after the break, okay. Thank you.